हाँ जी. So we were discussing about data science. Now we are discussing about what is the actual goal of data science. As we have earlier discussed, there is only a thing that is to be used for everything that we are doing. That is data. Whatever we are doing in a technology world is only with the help of data we can do. So data is the actual basic raw material for every product that we are developing in the today's growing market, that is totally based on technology. So data science governs such kind of platform where the users are turning the data into the final products, the products that deliver some specific purpose, that deliver some specific kind of actions that are required for particular problem to be solved. So for that, we are using data science to extract that particular kind of data which is required for a specific problem to be solved. And when the refined data is achieved by us, then that data is transformed into the final product. Will totally be based on the data that is required for that particular problem. तो क्या हो गया? It is a problem specific domain. यानी कि ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने में हेल्प कर रही है डेटा साइंस, जिसकी जो क्या है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक है. दैट इज नॉट द जनरलाइज्ड प्रोडक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. We are talking about specific products that are used for the problems that are existing in the market and their solution by using the data that is also existing in the market, but in a refined way, in a more managed way, in a more organized way. So there is a Kaggle platform which provides various kind of competitions on the machine learning that is totally based on data science. And these are, as you can see in the right, various competitions that are currently going on in the market. Okay, in the on the Kaggle platform, from which you can learn about what actually is machine learning and how data science is implemented in that. Now we come to, now after so much of discussion, so much of huge discussion, we have come to a visual definition of data science. Visual definition means what are the actual acting skills or techniques that are required for a data science to be implemented in a particular field. So as you can see in the diagram, there are three main domains that we are having to use for data science, and these are hacking skills. Hacking skills are, as you all aware about what is hacking, and the skills that are incorporated in a particular user or the technology is the main area or the main aspect for data science, because we are dealing with a bulk of information and we are in a hunger to find that particular data which is of our necessity, and for that we require some kind of sophisticated tools and techniques to extract the data. So hacking skills are the main key concept which we can use to access the data from various kind of sources that are totally prohibited. Specifically, if we talk about, means that information that is not publicly available. Yes, Balji?
Baljit, did you raise the hand? Okay. So thus, these are the specifics. As you know, what is hacking? Where you are using your sophisticated mechanisms to access to the resources that are highly in a secured way and that are totally in private space. So if from such kind of space you want to access the data, you are required to use the hacking skills. Now another one is the substantive expertise. Expertise means one's self consciousness to drive the things. आप हैकिंग स्किल्स आर टू एक्सेस द डेटा, लेकिन वो डेटा कौन सा डेटा एक्सेस करना है उसके लिए रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन योरसेल्फ to identify which kind of data to be accessed from which resource and what will be the authenticity of that data to use for your particular application. अब डेटा तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा कैन बी अवेलेबल एट डिफरेंट लोकेशंस, तो भाई आप कौन से डेटा को एक्सेस करोगे, किस पर्टिकुलर रिसोर्स से एक्सेस करोगे डेटा की, जहां पे जिसकी ऑथेंटिसिटी प्रॉपर हो और जिसको आप इफेक्टिवली यूज कर सको अपनी एप्लीकेशन के लिए. तो एक्सपर्टीज इज आल्सो रिक्वायर्ड इन दिस. ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और डाटा साइंटिस्ट बन के बैठ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. You have to be some, you have to incorporate some kind of specific skills required for becoming a data scientist. So that skill. And the third one is the maths and statistics knowledge. That means because what we are dealing about, we are dealing with a huge amount of data, और उस डेटा का हमें क्या करना है, हमें उसको भी रिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. And for that what we require some kind of mathematical and statistical tools. तो वो टूल्स पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें हाईली रिक्वायर्ड है. इफ वी रिक्वायर्ड टू manipulate any kind of data, for analysis of data, for manipulation of data, there are two basic skills, that is mathematical and statistical. तो ये दोनों की दोनों नॉलेज आपके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए इफ यू आर एक्टिंग एज एन डेटा साइंटिस्ट. ठीक है जी. आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एंड यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ हैकिंग स्किल्स टू एक्वायर द डेटा. ठीक है. अब देखो कैटेगराइजेशन किया है इन स्किल्स का डिफरेंट अप्रोचेज के साथ, कि भाई अगर आपकी एक्सपर्टीज और आपके मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें, तो दैट इज योर ट्रेडिशनल रिसर्च. ट्रेडिशनल रिसर्च जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसके अंदर कोई डेटा साइंस का कंसेप्ट नहीं है, जहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ आप एक, आपके पास डेटा है, आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट सेट कर लिया कि मुझे दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और उसके लिए आपके पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज है, तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए है. अब दैट ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट इज जनरली नोन एज द ट्रेडिशनल रिसर्च, जो कि जनरली आपके जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स प्रोग्राम के अंदर इनरोल होते हैं, जिसको पीएचडी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. उसके अंदर जो लोग करते हैं रिसर्च, दैट इज द ट्रेडिशनल रिसर्च, जिसके अंदर क्या होता है, आपने ऑब्जेक्टिव के पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव ले लिया, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप क्या करते हो, काम करते हो, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आप डेटा को एनालाइज करते हो, यानी कि यू आर हैविंग ए वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, और उसको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपने पर्टिकुलर एक छोटे से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो दैट इज योर ट्रेडिशनल रिसर्च. इफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज is combined with the substantive expertise, so that is your traditional research. Up in the same way, if the hacking skills and your expertise gets combined, hacking skills bhi hai and you are very expert in your particular area, तो वहां पे क्या होगा, that is the most danger zone. क्यों? क्योंकि हैकिंग स्किल्स भी है आपके पास,
दैट मीन्स यू कैन हैव अनऑथराइज्ड एक्सेस टू वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और आपके पास एक्सपर्टीज भी है। एक्सपर्टीज किस चीज की? जो रिसोर्सेज को आप एक्सेस तो कर लिया, हैकिंग स्किल्स तो सिर्फ क्या है? उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने की एक टेक्निक है। अब वो रिसोर्सेज एक्वायर करने के बाद आप क्या करोगे? तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन यू, कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, उस पर्टिकुलर डेटा को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सको? यूटिलाइज करो। अब यूटिलाइज, क्योंकि वी आर हैविंग द मेन टू स्किल्स, हैकिंग स्किल एंड और जनरल एक्सपर्टीज ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज। तो आप क्या करोगे जी? क्योंकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हो, तो देर आर हाईली negative chances, you can say, that you are going to lead into the dark zone of your life, जहां पे आप क्या करोगे? You are going to go into the wrong doings which lead to the societal and personal harms to your life. तो ऐसी चीजें अगर आप करते हो तो दैट बिकम्स ए डेंजर जोन, जहां पे आप क्या होगा? आप पॉजिटिव चीजें कम करोगे और नेगेटिव चीजें करने के चांसेस क्या है आपके? ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। इन द सेम वे, इफ हैकिंग स्किल्स आर कंबाइंड विद मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल नॉलेज, ठीक है जी, हैकिंग स्किल्स को आपने किसके साथ कंबाइन कर दिया? मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल नॉलेज के साथ। तो जी दोनों मिलके क्या फॉर्म करती हैं? मशीन लर्निंग। ठीक है जी। यानी कि मशीन लर्निंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल नॉलेज एंड द डेटा एक्विजिशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग हैकिंग। तो दैट इज द मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? क्योंकि मशीन लर्न कर रही है, तो मशीन लर्न किससे करेगी? फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेयर इट वर्क्स, फ्रॉम द डेटा ऑन विच इट ऑपरेट्स। तो वहां पे क्या होगा? अब जब डेटा, मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि एक मशीन किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर काम कर रही है और वो सेल्फ लर्निंग करेगी बाय यूजिंग दैट डेटा और दैट एनवायरनमेंट इन विच ऑपरेट्स। तो वहां पे अब लर्न कैसे करेगी? फॉर लर्निंग पर्पस इट रिक्वायर सम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स और एल्गोरिथम्स और प्रोसीजर्स, जिसको यूज करके क्या करेगी वो मशीन? वो मशीन उस एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके और अपने आप को क्या करेगी? रिफाइन करेगी फॉर बेटर आउटपुट्स इन द कमिंग प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी फेस करेगी मशीन, तो उनको एक बेटर वे में रिजोल्व कर पाए, इसलिए क्या करेगी? वो एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके लर्न करती है। ठीक है जी। उसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं कि भाई मशीन है वो लर्न कर रही है डेटा से, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है। क्योंकि डेटा कहां से आ रहा है? यूजर के पास से। तो यूजर के डेटा को अगर मशीन लर्न करेगी तो मशीन क्या करेगी? मशीन विल वर्क अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ द यूजर। और यूजर को क्या चाहिए? यूजर को यही तो चाहिए कि मैं जैसे चाहता हूं मशीन वैसे काम करे, और उसी के लिए मशीन क्या करने लग रही है? लर्न करने लग रही है बाय यूजिंग वेरियस मेथोडोलॉजीज, वेरियस प्रोसीजर्स, वेरियस एल्गोरिथम्स। तो दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों चीजों की। अगर हैकिंग स्किल्स, आपकी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज एंड योर सब्सटेंटिव एक्सपर्टीज, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो दैट बिकम्स डेटा साइंस। यानी कि डेटा साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर वे ऑफ एक्सेसिंग द रिसोर्सेज and their manipulation by using various mathematical and statistical tools, and using your expertise to incorporate those resources for a particular problem to be solved. आप उन रिसोर्सेज को यूज करोगे किसके लिए? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो दैट बिकम्स डेटा साइंस। यही तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। डेटा साइंस क्या कर रहे हैं हम वी आर डीलिंग विद ए बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर डीलिंग विद ए बल्क ऑफ डेटा, जो कि रो डेटा है। अब उस रो डेटा को हम क्या कर रहे हैं? वी आर मैनिपुलेटिंग दैट डेटा फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस।
Our purpose can be any problem that is under our consideration, or it can be a societal impact related to any particular statement or scenario that we are acting on, or it can be any kind of situation that arise due to the various kind of anomalies that are in the that are existing in the environment. अब उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? You are dealing with the things that are required to solve those particular kind of situations in a better and effective way. That is your data science. Now we are having some comparison of database and data science. If you talk about the data value, तो databases के अंदर जो data value होती है वो क्या होती है? Precious होती है. और data science के अंदर क्या होती है? Data की value is very cheap because we are dealing with a bulk of data. हमारे पास bulk of data available है. हमें क्या करना है? उस डेटा को रिफाइन करना है. लेकिन डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन और स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो वहां पे डेटा की इंपॉर्टेंस इज वेरी हाई. ठीक है. डेटा वॉल्यूम, डेटाबेसेस के अंदर लिमिटेड डेटा होता है रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन. डेटा साइंस के अंदर क्या होता है? मैसिव डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. एग्जांपल्स आपके बैंक रिकॉर्ड्स है, पर्सनल रिकॉर्ड्स है, सेंसस है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब क्या आते हैं आपके डेटाबेस के अंदर होते हैं. डेटा साइंस के अंदर क्या होता है? ऑनलाइन क्लिक्स के थ्रू डेटा जनरेट होता है. जीपीएस लॉग्स, कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग जीपीएस यूज करने लग रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग ट्वीट्स करने लग रहे हैं. देयर आर lakhs or crores of sensors that are working in different organizations, buildings and other kind of things. तो वो सब क्या कर रहे हैं? डेटा को अक्वायर करने लग रहे हैं. ठीक है. अब प्रायोरिटी किसकी है? डेटाबेसेस के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, एरर आ जाए तो उससे रिकवरी चाहिए, और ऑडिटेबिलिटी चाहिए. ऑडिट कर सके हम, यानी कि डेटा वैल्यू क्या हो? सेम हो एट डिफरेंट लोकेशंस. ठीक है. डेटा साइंस के अंदर किस चीज की प्रायोरिटी है? स्पीड. स्पीड चाहिए हमें, क्योंकि वी आर डीलिंग विद बल्क ऑफ डेटा. अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. एंड क्वेरी रिचनेस, यानी कि क्वेरी हम कर सके. एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा हमारे पास इंटरफेस होना चाहिए जहाँ पे हम क्वेरीज के थ्रू हम क्या कर सकें? डेटा को रिफाइन कर सकें. क्योंकि बल्क ऑफ डेटा है तो वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ क्वेरीज, सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें? क्वेरी क्या होती है? इंस्ट्रक्शन ही तो होती है ना. आप सबने डेटाबेस पढ़ा है. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड, तो डेटाबेस क्या होते हैं? स्ट्रांगली स्ट्रक्चर्ड होते हैं. इनका एक पर्टिकुलर स्कीमा होता है, उसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस क्या होता है? फॉर्मुलेट होता है. ठीक है जी. और डेटा साइंस के अंदर क्या होता है? कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है ये, क्योंकि डाटा क्या है? बल्क में अवेलेबल है. जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा क्या करते हैं? यूज करते हैं. प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपको डाटाबेस की प्रॉपर्टीज का पता है. एसिड प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है जी. इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर सीएपी प्रॉपर्टीज होती है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस. ठीक है जी. ये तीन मेन प्रॉपर्टीज होती है. दूसरे कहता है दैट लीड्स टू इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी तो एक जनरल थिंग है जो आपका इवेंचुअली, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस है, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन आप क्या कर रहे हो? डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हो. रियलाइजेशन, फॉर्मुलेशन कैसे करते हो? एसक्यूएल के थ्रू करते हो डेटाबेस को. डेटा साइंस के अंदर क्या होता है? मोंगोडीबी है, कोचडीबी है, एचबेस है, कैसेंड्रा रैक है. ठीक है. मैमकास्ट है, अपाचे सर्वर है, अपाचे राइवर है. ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा साइंस के अंदर काम कर सकते हो फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, फिर फॉर एनालाइजिंग द डाटा एंड फॉर इवेल्युएटिंग द डाटा फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम. तो वी आर डीलिंग विद द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द डेटा साइंस. तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हैं हम. अब वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो टेक्निक्स इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे? कहाँ पे करेंगे? पास्ट के ऊपर. डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है बिजनेस का? पास्ट में. हम 10 साल से कोई बिजनेस को रन करने लग रहे हैं, तो उस 10 साल की पूरी हिस्ट्री को, पूरे स्टेटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि विच आर द एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस टू ग्रो. तो हम क्या करते हैं? वी लुक एट द पास्ट एंड फ्रॉम देयर we make some particular plan, we make some particular kind of procedures, we make some particular kind of layouts, जिससे हम बिजनेस को क्या कर सकें? ग्रो कर सकें, उसको इंटेलिजेंट बना सकें, उसको और ज्यादा इवॉल्विंग बना सकें, ग्रोइंग कर सकें.
ठीक है। लेकिन जहां पे बात करते हैं हम डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस क्योंकि इज वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, इज वर्किंग इन द रियल लाइफ सिनेरियोज, तो वहां पे क्या होता है, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर और ऑल इन्वॉल्व इन द डेटा साइंस। यानी कि आप पास्ट डेटा को भी यूज करोगे कि पास्ट के अंदर क्या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हुआ डेटा का, किस हिसाब से डेटा पहले यूज हुआ था, अब आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किस तरीके से डेटा यूज करें, प्रेजेंटली आप डेटा किस तरह से इंप्लीमेंट करने लग रहे हो, एंड व्हाट आर द फ्यूचर कंसीडरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डाटा साइंस टू बी implemented for a particular scenario. So that is the difference between business intelligence and data science. कि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आप सिर्फ पास्ट डेटा के ऊपर डील करते हो, और यहाँ पे आप क्या करते हो डेटा साइंस के अंदर, यू आर डीलिंग विद द पास्ट, यू आर डीलिंग विद द प्रेजेंट एंड यू आर वर्किंग फॉर द फ्यूचर, for a better future, for a better solution to the problems that are currently existing in the market. That is the actual purpose of data science. कि हम आज जो existing bulk of data है, जो big data है, उस big data को हम refine करके ऐसी kind of applications develop करें, ऐसी kind of situations develop करें, ऐसी kind of scenarios evolve करवाएं, जिससे क्या हो कि जो future के अंदर जो things that are going to happen, हम उनको क्या कर सके, एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड कर सके, एक सिस्टमैटिक सिनेरियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी। These are the various kind of resources that are working on the analytics and data science conceptual formulation. These are some kind of resources or you can say books that are available, जिनको आप use कर सकते हो for a study purpose of different the concepts related to data science. Now we are dealing with the machine learning. तो machine learning क्या करती है, it develops new models, लेकिन data science के अंदर क्या होता है, explore many models, build and tune hybrids. मशीन लर्निंग के अंदर नए मॉडल बनते हैं, डेटा साइंस के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग मॉडल्स को आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, इवेलुएट करते हो, और क्या करते हो, हाइब्रिड मॉडल्स क्या करते हो, डेवलप करते हो, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स उनको क्या करते हो, आप रिफाइन करते हो। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, प्रूव मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स जो होती हैं उनको प्रूव करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एम्पिरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। ठीक है जी। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, well it improves or validate on a few relatively clean small data sets, यानी छोटे छोटे डेटा सेट्स के ऊपर काम करती है। लेकिन डेटा साइंस किस पे काम करता है, बिग डेटा के ऊपर, ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर। ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, आपने कोई मॉडल डेवलप कर लिया, आपने कोई उसको वैलिडेट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, पेपर पब्लिश करते हो, पब्लिश ए पेपर कि हमने ये मॉडल तैयार किया। लेकिन डाटा साइंस के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि डाटा साइंस इज वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कोई पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, एक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी। तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स को इवेलुएट क्या करते, क्या होता है, डाटा साइंस परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ एक्शंस to implement new and refined things in the market. So this is all for today. If you have any doubts, so you can ask. अभी सारे वीडियो ऑन कर लो अपनी तुरंत, 1 मिनट में, नहीं तो यू हैव टू कनेक्ट अगेन फॉर अटेंडेंस। बाल सवारी
हाँ भाई, मैं कुछ कह रहा है सर। बैंक कह रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। कुछ तो कह रहा है सर, पूछ लो। तो भाई हमने सुनी की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हम अभी अटेंडेंस